अभी ये ईयर में वॉयेजर 1 ने सोलर सिस्टम क्रॉस करके बाहर का चीजें दिखाना शुरू कर दिया है। हमें सोलर सिस्टम के बाहर एक नॉइज डिटेक्ट हुआ था जो इंटरस्टेलर नॉइज भी बोलते हैं, वो हमने अभी सुना ये ईयर में। अगर 90s के टाइम की चीज अगर हमें अभी सुनाई दे रही है, वो अगर अभी सोलर सिस्टम क्रॉस कर रहा है, तो यू कैन इमेजिन कि कितना गैप है, डिस्टेंस कितना गैप है पर्टिकुलर प्लैनेट्स के बीच में भी। एलियन लाइफ एग्जिस्टेंस उसका प्रूफ तो हमारे पास नहीं है, लाइक एक सॉलिड प्रूफ नहीं है, बट रिसेंटली जब पेंटागन ने उनके सीक्रेट वीडियोस डिस्क्लोज किए थे, उसके अंदर यूएफओ साइटिंग्स दिखाई दिए थे। हाय प्रथमेश, वेलकम ऑन द आवारा मुसाफिर शो। बिफोर हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड करें, जस्ट क्योंकि मैंने ये लिख के रखा है तो मुझे ये पहले इंट्रो बोलना है। सो फॉर एवरीवन हु आर न्यू टू प्रथमेश as a person or as a person who is an expert at science, at space, जो भी स्पेस में हो रहा है, हम उन सबके बारे में प्रथमेश से बात करेंगे। सो प्रथमेश इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल स्पेस सोसाइटी मुंबई एंड ऑल्सो ग्रेविटेशनल वेव साइंस कम्युनिकेटर फॉर लाइगो इंडिया। तो ये मैंने लिख के रखा था। एंड बिफोर वी टॉक कि साइंस के दुनिया में क्या चालू है, स्पेस के दुनिया में क्या चालू है, आई हैव बेसिक 2 क्वेश्चंस। एनएसएस विच इज नेशनल स्पेस सोसाइटी, ये क्या है? एंड उसके बाद में जो सेकंड टर्म आपने कहा था वो क्या है? Okay, so thank you so much for inviting me on this podcast. I'm very humbled and pleased to be here today with you. So National Space Society Mumbai chapter is basically a chapter of National Space Society, which is in DC, Washington DC in US, and it was started by one of the most famous person in space history, we can say, Werner von Braun. He was the chief architect of Apollo 11's rocket, Saturn V. Yeah. So he started this as a non-profit organization in DC, and then it spread it out worldwide. And we have started this chapter here in Mumbai in 2019, and it was inaugurated by one of our mentor, Dr. Ravi Margasayam. He is our chief mentor, and we aim to promote STEM and space so that we can get more and more space enthusiast people, give out lectures, webinars, activities related to space. And we are now focusing on research papers as well. We recently published 5 papers at an international conference, and it was really amazing to be there. Moving forward to LIGO India. LIGO India is India's next biggest mega science project, which aims to find gravitational waves using laser interferometers, and such kind of interferometers are already present across the world. There are 2 of them. One is LIGO and one is Virgo. They are currently in operation, and the third one will be here in India, and it is going to create huge opportunity for students who are actually looking forward to being into space sector, even if you're from engineering background, because in LIGO you have to construct those laser interferometers, and as well as there will be huge amount of data, and many institutes who are currently into space, let's say IIA or IUCA, such kind of institutes are supporting that project. Wow. Let's talk about जो hot topics है. So how do you want to start it off? Like किस news से हमें start करना चाहिए? We'll go with the very fresh news that came in today. जो James Webb Telescope था, next generation space telescope, अभी recently launch हुआ था दिसंबर में, 25 दिसंबर को. वो अपने destined destination पे पहुंच गया, which is Lagrange point L2, and it is one of the most complex telescope. Complexity हद पार है. Engineering उसके अंदर जो एक level पे की है, अगर वो telescope जाते टाइम पे fail हो जाता, it would have been a massive loss, and बहुत like almost 20 साल के ऊपर उन लोग ने work किया उस चीज पे, engineers, scientists and collaborations from different countries. NASA के जितने भी collaborative countries है, वो फिर CSA, which is Canadian Space Agency, and ESA, which is European Space Agency, ये तीनों ने मिलके ये telescope को create किया है. But what is this telescope? मतलब इसका importance क्या है, क्या काम करेगा? Can you shed light on that? Okay, so James Webb एक
ऐसा स्पेस टेलीस्कोप है जो हमें यूनिवर्स के स्टार्टिंग के स्टार्स और प्लैनेट्स जो क्रिएट हुए थे या फिर होंगे उन्हें देखने में मदद करेगा, बिकॉज वो पूरा इंफ्रारेड पे डिपेंडेंट रहता है। और अभी के जो इंफ्रारेड अभी जेम्स वेब में जो इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है वो हबल से थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और इसको हमने स्पेसिफिकली लैग्रांज पॉइंट L2 पे रखा है, बिकॉज वहां पे उसका शेडिंग रहेगा अर्थ की वजह से। जब भी सोलर इवेंट होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है और इमेंस अमाउंट ऑफ हीट रहता है जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को हार्म कर सकता है, बट अर्थ की वजह से वो प्रोटेक्शन में मिल जाता है। और वो एक L2 एक स्टेबल ऑर्बिट है जिससे वो सरकेगा नहीं एक साइड में, बिकॉज जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होते हैं उसके वजह से वो एक लैग्रांज पॉइंट बनते हैं। और हमारे पास 5 लैग्रांज पॉइंट है जिसमें से L2 इंफ्रारेड टेलीस्कोप के लिए बहुत फेवरेबल है। ओके, सो मतलब इन लेमैन्स लैंग्वेज जैसे अभी जो हबल टेलीस्कोप था, लेट्स अज्यूम दिस इज द हबल टेलीस्कोप एंड इससे हम इतना डिस्टेंस देख सकते हैं, बट जो जेम्स वेब है उससे वी कैन रीच टू अ फादर पॉइंट, राइट? यस। तो विल दिस इन अ वे, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट हियर इज कि मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन द लॉन्गर रन, बिकॉज जब तक हमारे पास में हबल टेलीस्कोप था ओके वी न्यू कि जो एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स था हम वहां तक देख सक रहे थे, एंड इससे हमारा वो जो ऑब्जर्वेशन का जो एक लिमिट होगा वो बढ़ जाएगा। तो इज इट पॉसिबल टू ऑल्सो नाउ गेस कि मतलब दिस इज अ वेरी फार फ्लेच्ड क्वेश्चन बट कि लाइफ एग्जिस्ट ऑन अदर प्लैनेट एज वेल? Yes, there is a possibility, but it won't be actually detecting, मतलब लाइफ के साइंस नहीं डिटेक्ट करेगा, बट वो पर्टिकुलर एक्सोप्लैनेट है जिसपे वो फोकस करेगा, उसके अंदर के केमिकल कंपोजिशंस क्या है वो स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये दिस इज अ पर्टिकुलर सुटेबल प्लैनेट फॉर सस्टेनेबल लाइफ। या सो बिफोर वी टॉक मोर, एक यहाँ पे छोटा सा डिटूर लेते हैं वेयर वी टॉक अबाउट कि पहली चीज तो आई वांट यू टू एक्सप्लेन टू पीपल कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वाला क्या कॉन्सेप्ट है, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट मुझे खुद को नहीं पता था, ये तो मैं जब रिसर्च करने बैठा तब आई गॉट टू नो कि हम पूरा मतलब यूनिवर्स इज वेरी वास्ट एंड हम वो सब नहीं देख सकते, देयर इज अ लिमिट टू इट। तो कैन यू एक्सप्लेन दिस कि क्या होता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एंड एग्जैक्टली कहाँ तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड क्या क्या अब तक हमने ऑब्जर्व किया है? वेल, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देखा जाए तो लोकल क्लस्टर्स जिसके अंदर डिफरेंट एंड्रोमेडा गैलेक्सी या फिर डिफरेंट गैलेक्सीज है, दैट इज आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। उसके बाहर जो है वो हमें अभी तक पता नहीं, कितना एक्सपांड हुआ यूनिवर्स वो भी हमें पता नहीं है। बट ये लोकल क्लस्टर्स के बाहर भी बहुत कुछ है, और वो गैलेक्सीज के अंदर पर्टिकुलर सिस्टम्स, उनके अंदर के एक्सोप्लैनेट्स, वो अगर प्लैनेट्स अगर एक सब हैबिटेबल जोन के अंदर है या नहीं, that we might be able to find out. Right. And मतलब जब अब जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है तो is it right that when the like for example जब Big Bang हुआ तो the planets and the universe galaxies they all started moving away from each other and वो अभी भी चालू है। तो लाइक फिर जेम्स वेब जब हमने लॉन्च किया एंड इट गोज इनटू द स्पेस, अब तो वो एक आपने जैसे कहा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गया है, तो हाउ फार कैन इट सी नाउ? गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुए थे उस तक हम पहुंच सकते हैं उसकी वजह से। ओके, आई वांट टू ब्रेक यू हियर क्योंकि ये जब आपने कहा कि अर्ली गैलेक्सी एंड स्टार्स कैसे फॉर्म हुए थे वो हम अब देख सकते हैं, तो आई वांट यू टू एक्सप्लेन दिस टू पीपल क्योंकि आई एम श्योर कि ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि हम बेसिकली पास्ट देख रहे हैं अब, तो ये तो आप एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। So, जब बिग बैंग हुआ था तब वो 13.6 मिलियन ईयर्स अगो, इफ आई एम राइट, या सो उस टाइम से वो लाइट आने के लिए टाइम लगता है प्रेजेंट सिचुएशन में। अगर अभी एक स्टार हम देख रहे हैं डार्क नाइट में, तो वो स्टार शायद एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट उसके लाइट आने के लिए टाइम लग रहा है। इवन एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड पे भी अगर वो लाइट आ रहा है तभी भी इट विल टेक टाइम, बिकॉज सन से लेके अर्थ तक लाइट को पहुंचने के लिए 8 मिनट लग रहा है। तो अगर कभी सन गायब हो जाएगा, लाइक एक्सप्लोड हो जाएगा, तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा। यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हर एक चीज पे यूनिवर्स में। तो हम अभी अगर जेम्स वेब से देख रहे हैं पास्ट में,
तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर टाइम, मतलब वो पर्टिकुलर टाइम का सिनेरियो देख रहे हैं. दैट्स व्हाई स्पेस टेलीस्कोप्स को गेटवे टू यूनिवर्स भी कहा जाता है कभी कभी. राइट. जेम्स वेब का भी टेलीस्कोप का लाइक व्हाट इज द फ्यूचर एंड व्हाट विल बी इट्स सिग्निफिकेंस साइंस को, स्पेशली द एरोस्पेस इंडस्ट्री, उसको आगे ले जाने के लिए? अब जेम्स वेब अब फिलहाल एस्ट्रोनॉमी में बहुत फोकस करेगा. हमें गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स कैसे फॉर्म होते हैं और इवॉल्व कैसे होते हैं आगे, वो पता चलेगा. जेम्स वेब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जिसने फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल लिया था, उसके साथ वो कोलैबोरेट करके हमारे मिल्की वे के अंदर जो बड़ा मैसिव ब्लैक होल है उसको ऑब्जर्व करेगा. प्लस लाइफ साइकिल, स्टार्स का जो लाइफ साइकिल है फ्रॉम बर्थ टू द डेथ, लाइक फ्रॉम क्रिएशन ऑफ स्टार टू मेकिंग इट हैपन टू ब्लैक होल, वो पूरा साइकिल वो ऑब्जर्व करने में मदद करेगा. प्लस इन्वेस्टिगेट करेगा प्लैनेटरी सिस्टम्स, जैसे सोलर सिस्टम में वैसा अगर कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है बाहर, उनको ऑब्जर्व करने में मदद करेगा. प्लस एक्सोप्लैनेट्स और उनके एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने बोला था, और उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, वो देखने के लिए हमें मदद मिलेगी जेम्स की वजह से. वाओ. So that is basically a big boost to the whole aerospace space, as in the industry. You can say astronomy more. Astronomy, okay. So what is the difference? मतलब aerospace and astronomy में क्या difference होता है? So aerospace में you create airplanes, models, rocket engines, and all those engineering stuff. और astronomy, it is study of the universe, जहाँ पे आप planets, galaxies, stars, black holes, neutron stars, ये सब particular phenomenon, उनके पीछे का रीजन क्या है, वो सब स्टडी करते हैं. राइट. एंड यू मेंशन्ड अभी ब्लैक होल, तो हमारा प्लान नहीं था इसको कवर करने का, बट आई एम श्योर कि देयर विल बी पीपल हु वुड वांट टू लिसन टू दिस, क्योंकि ब्लैक होल रिसेंटली वी गॉट अ फेयरली क्लियर पिक्चर ऑफ ब्लैक होल एंड द प्रूफ कि दे एग्जिस्ट, ब्लैक होल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो कैन यू टॉक अबाउट ब्लैक होल्स कि ब्लैक होल्स फर्स्टली होते क्या है, ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं, एंड इनके बनने के बाद में क्या होता है, बिकॉज द ब्लैक होल विच वी फाउंड इज वेरी क्लोज टू द मिल्की वे गैलेक्सी. नहीं, हमने जो ब्लैक होल का इमेज देखा था वो मिल्की वे गैलेक्सी का नहीं था, वो बाहर का था. ओके. उसके पीछे का रीजन है कि हम अगर मिल्की वे गैलेक्सी में देखेंगे तो वहां पे डस्ट पार्टिकल्स है वो एक्यूमुलेटेड रहेंगे, वो हमें दिखेगा नहीं. बट हम एक पर्सपेक्टिव एंगल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बाहर वाला जो ब्लैक होल है जिसको हमने ऑब्जर्व किया, वो हमें जल्दी से दिख जाएगा, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा. गॉड. और उसके फॉर्मेशन बोला जाए तो जब एक स्टार कोलैप्स हो जाता है खुद के ग्रेविटी के अंदर, सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. आपने टग ऑफ वॉर देखा रहेगा. टग ऑफ वॉर में एक साइड से खींचते हैं, दूसरे साइड से भी खींचते हैं. जब वो प्रेशर मेंटेन रहता है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, और दोनों साइड से इक्वल मेंटेन प्रेशर, हिलता नहीं वो चीज, वो रोप हिलता नहीं है. तो सेम सिनेरियो हम इमेजिन करेंगे स्टार के एक सरफेस पे. स्टार के अंदर जो पावर सोर्स रहता है, जो फ्यूजन क्रिएट करता है पावर, वो बाहर का जो ग्रेविटेशनल प्रेशर है वो एक्सर्शन में इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है ताकि उसका स्टार का कोर कोलैप्स ना हो. और जब वो प्रेशर मेंटेन होने के लिए हाइड्रोजन, हीलियम जैसे लाइटर वेट एलिमेंट बर्न होते रहते हैं, जो हमें पता है कि स्टार्स बर्न करते हैं उसके एज अ फ्यूल करके. जब वो फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है तब वो हैवियर एलिमेंट्स जैसे आयन, वो जब बर्न करने लगता है, वो एक मेंटेन जो रहता, वो प्रेशर जो इक्विलिब्रियम में था मेंटेन, वो ब्रेक हो जाता है. तब स्टार एक्सपांड होना शुरू हो जाता है, या फिर उसके ग्रेविटेशनल प्रेशर की वजह से कोलैप्स हो जाता है. जब वो कोलैप्स होता है तब वो सिंगुलरिटी फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ब्लैक होल क्रिएट होता है. वो ब्लैक होल जब क्रिएट होता है उसके बाजू में अगर कुछ आ गया, लेट्स से स्टार आ गया, तो वो एक असर्शन डिस्क के अंदर घूमना शुरू करता है. मतलब उसका डिस्ट्रक्शन होने के बाद उसके जो भी मटेरियल है उसके बाजू में स्पिन होना शुरू करता है. वो ब्लैक होल स्पिन होते रहते हैं हमेशा कॉन्स्टेंटली. और उसको अभी जो हमने इमेज देखा है ब्लैक होल का, वो एक्चुअली उसका एक्चुअल इमेज नहीं है, वो उसका शैडो है. और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसा वो शैडो फॉर्म हुआ है. बट जो हमने देखा है वो उसका सिर्फ इवेंट होराइजन है.
विच इज ऑल्सो रिफर्ड एज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। वो एक Okay. बार आपने क्रॉस कर लिया तो कोई भी चीज चाहे कुछ भी हो वो बाहर नहीं आ पाएगी। और ब्लैक होल का फोर्स इतना रहता है, मैसिव ग्रेविटेशनल पुल है कि लाइट को भी बेंड कर रहा है वो। Oh wow. So like कुछ I don't remember ये मैंने कहाँ पढ़ा है या कहाँ देखा है. Mostly this is बहुत सारे pieces of information so I'm putting it together. And black holes, are they a way to basically time travel or something, some sort of that way, like वो portal जैसा उसको कहा जाता है? हाँ, पोर्टल नहीं बोल सकते, बट ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इतना रहता है कि जैसे मैंने बोला लाइट को भी बेंड कर रहा है। जब आप वो इवेंट होराइजन लाइन क्रॉस कर रहे हो तो उसके बाद आपके लिए टाइम स्लो होना शुरू होता है। बट अगर आप समझो एक स्पेसशिप में जा रहे हो और वो इवेंट हो रहा है तो बाहर वाले पर्सन के लिए टाइम अलग रहेगा और अंदर वाले पर्सन के लिए टाइम रुक जाएगा, हमेशा के लिए रुक जाएगा। वाह, ओके ओके, ठीक है. मतलब इसके अराउंड इट्स वेरी टफ टू सडनली रैप माई हेड अराउंड दिस. बट हाँ, ये एक बहुत ही अमेजिंग एस्पेक्ट होगा फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस और वाचिंग दिस, बिकॉज ब्लैक होल्स आर समथिंग जिसके बारे में पॉप साइंस में भी बहुत बात होती है, फिल्म्स भी बनती है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फिल्म्स जो बनी भी है इसके ऊपर. So this was, that's why I wanted to bring this in. But when we talk about the other news in this whole aspect in this whole industry, तो अब वो क्या है फिर? So आगे देखा जाए तो आर्टेमिस 1 का प्रिपरेशन चल रहा है. आर्टेमिस 1 जो आने वाले 25 में बोल सकते हैं, बिकॉज पहले 24 डिसाइडेड था. 2025 में नेक्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन को वापस मून पे लैंड कराना है. नासा का मिशन है. जो उसके अंदर एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट नासा ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स निकाला है, जिसके अंदर सस्टेनेबल सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन कैसे परफॉर्म होगा, प्लस साइंटिफिक डेटा कैसे शेयर होगा, और वहाँ पे रिसोर्सेस कैसे शेयर होने चाहिए, और हमें साथ में लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट एज अ पर्टिकुलर एंटिटी और पर्टिकुलर एजेंसी बन के आगे कैसे जाना चाहिए, वो आर्टेमिस अकॉर्ड्स पूरा एलॉबरेट कर रहा है. और उस पे हमने एनएसएस के अंदर एक पूरा वेबिनार भी कवर किया, आप देख सकते हो उसके ऊपर. और आर्टेमिस 1 विल बी अनमैन्ड क्रू जो मून के अराउंड एक सर्कल लगा के वापस रिटर्न आएगा, ताकि नासा को एक सिस्टम चेक मिल जाएगा कि कहाँ पे वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं या फिर कहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है. बिकॉज अपोलो मिशंस के टाइम पे मून के बहुत पास से गया था जो भी स्पेसक्राफ्ट ये था, लूनर मॉड्यूल था. बट आर्टेमिस का जो ओरायन कैप्सूल है वो मून से थोड़ा और बाहर के साइड में जाएगा. मतलब इफ दिस इज अ मून, इट विल क्रॉस फ्रॉम हियर जस्ट फार्दर देन प्रीवियसली a man has gone. Yeah. But then आपने कहा कि उसका mission is to help a man and a woman land on moon again, right? Yeah. So I now I'm confused कि मतलब why again? Because एक बार तो हो गया तो and I'm sure कि ये बहुत ही मतलब basic questions है, but this is very tough to fathom around. So if you are you asking like आप पूछ रहे हो कि like वापस हम मून पे क्यों जा रहे हैं? Yeah. Right. So हमें अगर मार्स पे जाना है तो हमें इंटरमीडिएट स्टेशन चाहिए रहेगा जहाँ से हम रिसोर्सेज कलेक्ट करके या फिर लेट्स से एक बेस एस्टैब्लिश करके आगे जाए. बिकॉज हम अगर डायरेक्टली जंप करेंगे मार्स के लिए तो इट इज लाइक 6 months अवे फ्रॉम अस इन टाइम ड्यूरेशन, और हमें कम्युनिकेशन में भी बहुत लैगिंग आएगा. Right. वो अगर वहां पे मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत हार्श है, रेडिएशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है, हम अगर मार्स के लिए फोकस कर रहे हैं तो मून बेस इज समथिंग दैट वी नीड. बिकॉज मून के ऊपर भी रिसोर्सेस अवेलेबल है. मून के जो सॉइल है उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर्ड है इन सॉलिड फॉर्म. Okay. और वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विथ लूनर माइनिंग एक्सट्रैक्शन, और ऑल्सो रिफर्ड एज
इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन, तब Yeah. जहाँ पे वो सॉइल है उस चीज को कन्वर्ट करके हमारे फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो चीज. Right. So this is basically जो वो term है astro mining or something. Yeah. So this will come under that. नहीं, एस्ट्रो माइनिंग नहीं बोल सकते, एस्ट्रॉइड माइनिंग वो टर्म आपने सुना रहेगा कहीं तो. हाँ वो correct. रहेगा. एस्ट्रॉइड माइनिंग इज समथिंग लाइक, एस्ट्रॉइड में बहुत सारे मिनरल्स है जो हमें शायद पता भी ना हो, वो माइन करके वापस अर्थ के लिए या फिर कहीं और पे अगर हम स्टेशन बसा रहे या फिर सिविलाइजेशन बना रहे तो वहां पे वो रिसोर्स यूटिलाइज करने के लिए काम है क्या. वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बट यहाँ पे लूनार पे हम पूरा एक घर बना रहे हैं. So it will be like a facility जो हम वहाँ पे करेंगे. हाँ. Right. So this will be basically जो हम कहते हैं कि चेक पॉइंट्स होते हैं, तो मार्स पे जाने के पहले there will be a checkpoint on moon. Kind of. Okay. And so basically what is the whole big picture here? Because so first we tried to colonize Mars, but वो आपने जैसे कहा कि 6 months दूर है तो communications वगैरह में भी issue होगा and the radiations over there are very high. तो हमने मून को एक बेस बनाया. So in that same way कि are we trying to move out of the Milky Way galaxy धीरे धीरे? वो बहुत फार फेच्ड ड्रीम है, बट इम्पॉसिबल नहीं है. जो स्पेसएक्स ने क्लेम किया है कि उनका स्टारशिप हमें जुपिटर, सैटर्न वो पॉइंट तक ले जा सकता है. अगर वो क्लेम अगर राइट है तो शायद आने वाली सिविलाइजेशन, आने वाली जनरेशन हमारी शायद सोलर सिस्टम के बाहर जा सकेगी. बट मिल्की वे के बाहर जाना इज वेरी डिफिकल्ट. लाइक आई कांट इवन से दैट इट इज पॉसिबल विद करंट टेक्नोलॉजी. Yeah. So just एक अभी layman को समझाने के लिए मतलब how would you describe, मतलब Milky Way कितना distance wise and time wise, what is the farthest point जहां तक हम मतलब पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं, what is it? Okay, I don't remember, मतलब वो distance याद नहीं आ रहा मेरे को कितना बड़ा, but I could give one example. सोलर सिस्टम कितना बड़ा उसके पर्सपेक्टिव से आपको समझ जाएगा. 90s के टाइम पे Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 1 और न्यू होराइजन मिशंस, ये मिशंस लॉन्च हुए थे. जो अभी ये ईयर में Voyager 1 ने सोलर सिस्टम क्रॉस करके बाहर का चीजें दिखाना शुरू कर दिया है. हमें सोलर सिस्टम के बाहर एक नॉइस डिटेक्ट हुआ था जो इंटरस्टेलर नॉइस भी बोलते हैं, वो हमने अभी सुना ये ईयर में. अगर 90s के टाइम की चीज अगर हमें अभी सुनाई दे रही है, वो अगर अभी सोलर सिस्टम क्रॉस कर रहा है, तो यू कैन इमेजिन कि कितना गैप है, डिस्टेंस कितना गैप है पर्टिकुलर प्लैनेट्स के बीच में भी. राइट. वाओ. सो हाँ, मतलब as I had thought ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले कि there would be concepts जो बहुत ही मतलब ऐसे माइंड बेंडिंग हो सकते हैं, लाइक फैथम करना, क्योंकि दिस इज इन अ लेमैन्स लैंग्वेज ये सब बहुत एक ड्रीम जैसा होता है, फार फ्लेच्ड ड्रीम होता है. एंड इन द सेम वे जो आपने अभी नॉइस के बारे में कहा, जो इंटरसोलर नॉइस था, व्हाट इज दैट थिंग? बिकॉज आई एम रिमेम्बरिंग कि इसके बारे में न्यूज आया था, मैंने पढ़ा भी था. सो कैन यू एक्सप्लेन दैट? I guess I won't be able to do that. Yeah. Right. But like just take information के लिए कि that noise, what was that noise exactly? वो एक हमिंग नॉइज था जो शायद तक इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन का, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा वाला, बट वॉयेजर ने जब इंटरस्टेलर बाउंड्री क्रॉस किया सोलर सिस्टम का, तो उसके बाहर जाके उसको हमिंग नॉइज सुनाई दिया था. वो वीडियो भी अवेलेबल है, नासा ने अवेलेबल करके दिया है. एंड इट इज लाइक वेरी काइंड ऑफ नॉइज. ओके, वाह, ठीक है. तो इसके बारे में भी हमने बात की. एंड देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज. ओके, सो अभी जनवरी में देखा जाए तो शायद अगर FAA ने अप्रूवल दिया तो स्पेसएक्स का स्टारशिप का जो बूस्टर है उसका हमें ऑर्बिटल लॉन्च दिख जाएगा. जो स्पेसएक्स का जो ड्रीम है, जो मस्क का ड्रीम है, मार्शियन सिविलाइजेशन शुरू करना, अर्थ से पीपल को लेके, मतलब फर्स्ट मार्शियन को उतारना वहां पे, उसके लिए
booster launching, landing, or actually not landing but grasping. मतलब वो जब हमने देखा रहेगा, मोस्ट ऑफ लोगों ने देखा रहेगा स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 का बूस्टर है वो सीधा आके लैंड कर रहा है, जो ट्रेडिशनल लैंडिंग से भी डिफरेंट है, ट्रेडिशनल रॉकेट यूजेस से डिफरेंट है. सो सब लोग ने सोचा रहेगा कि शायद बूस्टर भी वैसे ही लैंड करेंगे, बट नहीं, दे आर यूजिंग मेगा चॉपस्टिक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो हवा में बूस्टर्स को पकड़ लेगा और सरका के वापस लैंडिंग पैड पे, लॉन्चिंग पैड पे रख देगा, और उनका लॉन्चिंग स्टैंड है काइंड ऑफ. और दिस विल बी अ मेगा माइलस्टोन, एक चेक पॉइंट हो जाएगा कि हाँ देयर सिस्टम्स आर वर्किंग. और मस्क का जो एम्बिशियस ड्रीम है 2026 में फर्स्ट मैन को मार्स पे उतारना, वो शायद उनको पुश मिलेगा. और स्पेसएक्स अभी नासा के आर्टेमिस में भी बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है. उनका ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम HLS के लिए जो उन लोग ने सिलेक्शन हुआ है स्पेसएक्स के स्टारशिप का, दे आर वर्किंग ओवर दैट टू, कि फर्स्ट वुमेन और नेक्स्ट मैन को वो ही उतारेंगे मून पे. राइट. एंड जब हम ये बात करें लाइक अबाउट द होल बिग मस्क ड्रीम जो है कि मार्स कॉलोनाइज करना, लाइक हाउ फार दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और दिस इज द फाइनल पॉइंट जहां से लाइक हम अब श्योर है कि ये हो सकता है? दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, कि अभी हमने शुरू किया है, बट मार्स पे उतरने के बाद हम शायद फर्स्ट जो मार्शन रहेगा वो शायद ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी मार्स पे डेथ हो सकती है, बिकॉज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास. बट अगर हम वो टाइम पे बिल्ड कर पाए और वहाँ पे हमें पता नहीं कि कैसे एक्ट करेंगे, अर्थ के जो भी हम लोग ये लेके जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जा रहे बना के वहाँ पे असेंबल करने के लिए, वो कितना सस्टेन कर पाएगा एटमॉस्फेयर मार्स का, और प्लस कितने टाइम तक रह पाएगा. और उसके बीच में अगर हम डीले हो गए रिसोर्सेज पहुंचाने के लिए अर्थ से लेके वहां पर, तो शायद उसकी डेथ भी हो सकती, वो पर्टिकुलर पर्सन की डेथ भी हो सकती है. तो इलॉन मस्क ने एक न्यूज में भी कहा था कि वी वोंट बी एबल टू सेव द फर्स्ट मार्शियन after he lands there. Wow. And are people ready to land there, मतलब first इसमें? बहुत से लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड है कि उनको मार्स पे जाके रहना है, बट वो ये नहीं समझ रहे कि उसके पीछे का ट्रेनिंग, उसके पीछे का जो एफर्ट्स, प्लस वहां पे आइसोलेशन में रहना, वो बहुत बड़ी बात है. बिकॉज यहाँ से अगर देखा जाए, अगर 6 मंथ के ड्यूरेशन में अगर जा रहे हम, तो हम शायद एक दूसरे को ही फाइट करके बीच में ही कुछ हो सकता है. Because isolation is something we can't afford, human can sustain. हमने अभी ही देखा रहेगा लॉकडाउन के सिचुएशन में आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था. अगर वो चीज हम विदाउट कम्युनिकेशन, किसी से बात ना करके, नो इंटरनेट, नथिंग, अगर वो सिचुएशन में आके किसी को रख दे, तो शायद वो इंसान पागल भी हो सकता है जाते जाते. वाह, हाँ, मतलब दैट्स अ डेफिनेट, मतलब चांस तो है. एंड कैन यू पेंट द पिक्चर फॉर पीपल की let's assume कि मार्स हम कॉलोनाइज करने में सक्सेसफुल होते हैं, सो द फर्स्ट मैन और द वुमन हु लैंड्स देयर, क्या उनके लिए सिनेरियो रहेगा ऑन मार्स? लाइक व्हाट विल दे फील, व्हाट वुड दे सी? कैन यू पेंट दैट पिक्चर? पूरा एक barren लैंड की तरह. मार्स इज रेड barren लैंड, and its redness is because of iron in its soil. और जब वो उतरेगा, जब फर्स्ट मैन या फिर वुमेन मार्स पे उतरेंगे, तो दे विल, आई गेस दे विल हैव देयर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कि वहां पे जाके सिर्फ काम करना है या फिर डिप्लॉयमेंट करना है उनको. और स्टारशिप को ऐसे बना गया है ताकि जो पर्सन उतरेंगे वहां पे, वो स्टारशिप के अंदर रह भी सकेंगे कुछ टाइम के लिए, जब तक उनका स्टेज या फिर पूरा शेल्टर डिप्लॉय ना हो जाए ठीक से. और उनके लिए हमारे लिए जैसा सनसेट रेड में होता है, ऑरेंजिश रहता है, उनके लिए वो ब्लू दिखेगा पूरा. ओह वाओ, ओके. सो बेसिकली दे माइट हैव टू फेस कि
जैसा आपने कहा कि हम टाइम पे उन्हें बैकअप ना पहुंचा पाए, टाइम पे हम उनसे कम्युनिकेट ना कर पाए, तो आइसोलेशन वुड बी वन ऑफ द मेजर इशू। क्योंकि फर्स्टली इंटरनेट नहीं होगा तो ऐसे ही एक दिन भी अगर यहाँ पे इंटरनेट नहीं होता है, पावर कट होता है, तो पीपल गो मैड। तो वहां तो यू हैव सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो आई कैन टोटली सी द पिक्चर नाउ। बट देन इन द लॉन्ग रन व्हाट इज और क्या लाइक प्लान है इन दिस whole I should say कि aerospace exploration? Um, not aerospace exploration, but space exploration. Space exploration, yeah. So जब हम मार्स पे कॉलोनाइज कर लेंगे, सिटीज वगैरह एस्टेब्लिश कर लेंगे, तो हम शायद एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जब वो ग्रीन थोड़ा होना शुरू हो जाएगा, मार्स को पूरा एटमॉस्फेयर आना शुरू हो जाएगा, और होपफुली वो एटमॉस्फेयर सस्टेन कर जाए, तो शायद मार्शियन born बेबीज या फिर मार्शियन born people will try to come to visit Earth, and maybe मार्स पे और अर्थ के कम्युनिकेशन डिस्टेंस टेक्नोलॉजी की वजह से शायद वो गैप कम हो जाए, मतलब जो डिले आता था वो डिले कम हो जाए। उसके बाद शायद हम सोचे आगे जाके सोलर सिस्टम के बाहर निकलने के लिए, और जुपिटर सैटर्न ये जो गैसियस जायंट्स है वहां पे तो उतरना मुश्किल है, बट उसके बाहर जा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि हमारा शायद तक आने वाली जनरेशन जो सैटर्न का मून है टाइटन, वहां पे फ्यूल आउटपोस्ट बना लेगा, बिकॉज सैटर्न पे मीथेन का एबंडेंस बहुत है। वहां पे मीथेन की लेक्स बहती है, और वहां पे टेम्परेचर माइनस में, लिटरली माइनस 180 के नीचे है। Oh wow. So basically that would be like a petrol pump? Kind of, बोल सकते हैं। Wow. And so basically what we are trying with every these missions is कि जैसे मून को एक चेक पॉइंट कर लिया, देन आपने अभी जैसे कहा कि टाइटन would be a petrol pump sort of thing. Mars in the longer run will be a checkpoint towards farther goals. Wow. Okay. So let's go towards the next news in this podcast. So what is the next news? So जैसा हमें पता था कि आई गेस मार्च या फेब में जब परसिवरेंस रोवर गया था यहाँ से, और उसने वो जर्नी कंप्लीट करके, आई डोंट रिमेम्बर द डेट मंथ एग्जैक्टली, जब परसिवरेंस रोवर यहाँ से लॉन्च हुआ था, तो उसके साथ उसने एक वन ऑफ द काइंड हेलीकॉप्टर कैरी किया था, जिसका नाम था इंजीनियोरिटी। एंड वो हमारे लिए मैनकाइंड के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, बिकॉज हमने किसी और प्लैनेट पे जाके एक फ्लाइट अचीव किया था, लाइक हेलीकॉप्टर फ्लाइट अचीव किया था। और वो हेलीकॉप्टर बहुत कम फ्लाइट्स के लिए डिजाइन था, बट इंजीनियर्स ने उसको पुश करके आज 18th फ्लाइट कंप्लीट की है, और विद फ्लाइट टाइम ऑफ 32 minutes 51 seconds, और 3.82 किलोमीटर ट्रैवल किया है 15 दिसंबर 2021 को। और वो पर्टिकुलर अचीवमेंट के बाद नासा आगे देख रहा है नेक्स्ट या फिर सेकंड हेलीकॉप्टर को भेजने के लिए, जिसके ऊपर डिफरेंट सूट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, जो हमें एक्सप्लोरेशन के लिए और हेल्प करेंगे। बिकॉज रोबोटिक्स एक्सप्लोरेशन जो भी थे अभी तक, जैसे क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस, स्पिरिट, जितने भी रोवर्स जा चुके हैं, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते, और बहुत टाइम लगता था ट्रैवल करने के लिए। तो फ्लाइट, बट देन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इज इट टफ? मतलब जो हम कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर वहां पे इतना पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया, इज इट टफ टू डू दैट? यस, इट इज टफ, बिकॉज और कंपेयर टू अर्थ एटमॉस्फेयर, वहां का एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट है। वहां का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर के जितना सपोर्टिव नहीं है फ्लाइट्स के लिए। तो वो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर को 500 RPM पे घूमना पड़ता है, ताकि वो एक लिफ्ट क्रिएट कर पाए। जबकि यहाँ पे वो इतना नहीं लगता। राइट।
ओके, गॉट इट. सो बेसिकली यू हैव टू डिजाइन इट इन अ वे कि वो वहां पे सस्टेन कर सके, इंस्टेड ऑफ कि मतलब जो हमारे पास कैलकुलेशंस है अर्थ के अकॉर्डिंग, तो यू आर बेसिकली गेसिंग एंड डूइंग द होल इंजीनियरिंग वर्क, फिर वो वहां जाके उसको टेस्ट कर रहे हैं. हाँ. ओके. एंड why would this, like इसका फ्यूचर सिग्निफिकेंस क्या है? कैन यू शेयर दैट एज वेल, बिकॉज आई एम श्योर कि अगर आप वहां पे जाके फ्लाइट ले सकते हो तो इन अ वे वी आर क्रिएटिंग ट्रांसपोर्टेशन मेथड जो उस पर्टिकुलर प्लैनेट या बॉडी पे हम यूज कर सकते हैं. सो अगर अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज द वन थिंग दैट कि हमें पता चल गया कि हमारी टेक्नोलॉजी सस्टेन कर सकती है वहाँ पे. राइट. ट्रांसपोर्टेशन एज यू सेड. प्लस वन मोर पॉइंट इन दैट इज हमारे जो स्पेस सूट्स है वो ज्यादा टाइम तक एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते. एज इन एक स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने के बाद हमें जो भी एक्टिविटी करते हैं वो पर्टिकुलर प्लैनेट या फिर सेलेस्टियल बॉडी पे उतरने के बाद दैट इज कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी, EVA. सो वो ज्यादा टाइम तक हो नहीं सकता. सो उसकी वजह से हम ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे, ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाएगा वो पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए. और रोवर जैसे हमारे स्लो है और फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है और फुल्ली ऑटोनोमस रख नहीं सकते, बिकॉज कुछ भी सिस्टम फंक्शन हुआ तो वो $1 मिलियन रोवर क्रैश हो सकता है, वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. राइट. और उसी वजह से एयरवेज इज काइंड ऑफ प्रिफरेबल, बिकॉज एक फ्लाइट के बाद अगर हमने उस चीज को ऑटोनोमस कर पाए और हम हमारे सिस्टम्स अगर अच्छे से डिटेक्ट करके लैंडिंग साइट्स भी अच्छे से चूज कर पाए तो शायद हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके लॉन्ग डिस्टेंस से सैंपल उठा के हमारे पास वापस रिटर्न लेके आ सकते हैं. जैसे पर्सिवरेंस रोवर का सेकंड मिशन है 2026 में वापस लेके सेकंड जो पार्ट है पर्सिवरेंस रोवर का, मार्स से सैंपल्स वापस लेने आना, जिसके लिए अभी तैयारी शुरू हो रही है. ओके, गॉट इट. सो 2 क्वेश्चंस हियर. फर्स्टली तो ये जो आपने कहा था एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज, वो लिमिटेड क्यों है? लाइक इज इट बिकॉज वो अर्थ का सामान है जो सूट जिससे बनते हैं एंड वो वहां सस्टेन नहीं कर सकते? इज इट बिकॉज ऑफ दैट? नहीं, बट एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी में जो सूट यूज होता है वो बहुत हैवी होता है. प्लस और जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं वो एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी वो सूट के अंदर वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहता है और वो तुम्हें रिफिल करना पड़ता है हर एक एक्टिविटी के बाद. और किसी और प्लैनेट पे ज्यादा टाइम तक बाहर रहना, अगर वहां पे लेट्स से तुम अगर ज्यादा टाइम लेट्स से तुम्हारा सूट सस्टेन भी कर रहा है वो ऑक्सीजन लिमिट के मतलब ज्यादा टाइम के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड भी कर रहा है, बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस में जाके कहीं पे भी जाके वो सूट में अगर रॉक भी अगर घुस गया अंदर तो एक हार्मफुल रेडिएशन आएगा, वो अलग बात है. प्लस तुम्हारी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, वो अलग, वो भी एक रिस्क है. गॉट इट. एंड द सेकंड थिंग व्हिच आई वांटेड टू आस्क वाज कि आपने जैसे कहा कि वहां से सॉइल या रॉक का जो पीसेस है वो वापस लेके आना ताकि हम उस पर टेस्ट कर सके, जो कि 2026 में होगा. तो अब तक ये हमने किसी भी प्लैनेट से नहीं किया है या हमने ये सब आई एम गेसिंग मून पे से किया होगा? मून अपोलो मिशन जो थे उन्होंने मून के आई गेस 3000 सैंपल्स लाए, 3000 kg सैंपल्स लाए थे जो यहाँ पे अर्थ पे नासा ने मून वॉल्ट के अंदर सेफली स्टोर करके रखे. ओके, वो फर्स्ट था. प्लस फिर उसके बाद जब जापान ने मून से सैंपल कलेक्ट करके मतलब बिना ह्यूमंस को भेजे अभी रिसेंटली सैंपल्स रिटर्न लाए थे. और हमने अभी जापान ने हायाबुसा मिशन के अंदर एस्टेरॉइड से भी सैंपल्स लेके आए. ओके, वाओ. तो एंड इसका मतलब यूज क्या होता है, किस चीज में हम इसे यूज करते हैं जो हम सैंपल्स वापस लेके आते हैं? सो सैंपल्स वापस लेके आने के बाद हमें वो पर्टिकुलर सॉइल का केमिकल कंपोजिशन पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या है और वो पर्टिकुलर केमिकल्स को यूटिलाइज करके आगे एक्सप्लोरेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, प्लस रिसोर्सेज कैसे जनरेट कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके हमारे फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. बिकॉज हर एक एलिमेंट बाहर के एक्सप्लोरेशन में लिए हमारे बहुत एसेंशियल रहेगा. गॉट इट. तो बेसिकली उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि आउटर प्लैनेट्स पे जो एक्सो प्लैनेट्स भी आप कह रहे थे कि वहां पे
किस टाइप का सॉइल है, एंड मार्स को जैसे आपने कहा कि उसे एक ग्रीन प्लैनेट बनाना है, तो वो सब चीजों में इसका फिर काम आएगा मतलब। गॉट इट, ओके। एंड ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज़ इज कि हमें पता है हमने अभी स्पेस ट्रैवल अचीव किया हुआ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमने एक स्पेस स्टेशन भी अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में इस्टेब्लिश किया हुआ है, ताकि हम वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट्स कर सके माइक्रोग्रेविटी में। सो उस हिसाब से हमने थोड़ा थोड़ा बेस इस्टेब्लिश किया है अर्थ पे स्पेस ट्रैवल के लिए। बट उसके आगे क्या, कॉमन पीपल के लिए क्या? तो कॉमन पीपल के लिए अभी धीरे धीरे स्पेस टूरिज्म जो एक न्यू कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो रहा है। और स्पेस टूरिज्म अभी नहीं शुरू हुआ है, एक्चुअली फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट अप्रैल 28, 2001 में था, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जाके आ चुका है, और वो रशिया से लिफ्ट ऑफ हुआ था सोयूज में। और वो फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट का नाम था डेनिस टिटोव, जो 20 साल पहले आज से फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट बना। और पीपल लोगों का भी थोड़ा सा डिफरेंट लाइक स्केप्टिक हो चुके हैं स्पेस टूरिज्म के हिसाब से, स्पेस टूरिज्म के लिए, क्योंकि क्लाइमेट कंसर्न, पॉल्यूशन वगैरह वगैरह। बट इसके लिए मेरा एक ओपिनियन था, मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि अगर यही चीज हम अगर आज के एयर ट्रैवल के लिए सोचते थे उस टाइम पे कि ओके नहीं बहुत पॉल्यूशन बढ़ा रहा है, बहुत ही हार्मफुल है, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो शायद हम इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ओवरसीज ट्रैवल अचीव ही नहीं कर पाते। तो हमें वो एक बेस रख के आगे बढ़ना है। और एरोस्पेस इंडस्ट्री इसके लिए ग्रीन प्रोपेलेंट पे काम कर रही है, जो लेस पॉल्यूशन काम करे, और जो भी जो फ्यूल बर्न होता है उसके बाद जो स्मोक निकलता है वो हार्मफुल ज्यादा ग्रीन रहे, मतलब ग्रीन फ्यूल के ऊपर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं मोस्टली। गॉट इट। एंड हाँ, मतलब दिस इज ऑल्सो फैक्ट ना कि जब तक आप एक चीज को प्रॉपरली स्टार्ट नहीं करोगे, यू कैन नॉट ब्रिंग इन उसमें कि इसको आप और ग्रीनर कैसे बना सकते हो, इको फ्रेंडली कैसे कर सकते हैं। रेगुलेशंस लाना भी मुश्किल है, क्योंकि मास लेवल पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। सो एक दो अगर कंपनीज काम करेगी तो उसको आप रेगुलेट कैसे करोगे? सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट, आई एम गेसिंग। ओके, गॉट इट। एंड यू जैसे अभी आपने कहा स्पेस टूरिज्म। अब स्पेस टूरिज्म जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान ही करे, स्पेस टूरिज्म तो एलियंस भी कर सकते हैं। एंड मिचियो काकू एक साइंटिस्ट है जिन्होंने, मैं उनका एक पॉडकास्ट सुन रहा था, एंड दिस इज हिज टॉल क्लेम कि द इंटरव्यू आस्क्ड हिम कि डू यू थिंक लाइफ एग्जिस्ट ऑन अदर प्लैनेट? तो ही सेड कि yes it does exist, and then he goes on to mention कि अगर aliens है, like, and aliens is very, वो films वाला हम वो सोचते हैं कि एक specific वो image आता है, but aliens is anything that is not human, that is from other planet, not basically our ecosystem, our planet. तो he said कि aliens do exist and they are living with us. So where do you like basically stand on this? Well, aliens का existence deny करना, it's similar to what कि वो एक quote है जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि अगर एक स्पून के अंदर में स्पून में पानी लेके मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे व्हेल है, मेरे को व्हेल नहीं दिखाई दे रहे, तो ऐसा है नहीं ना कि ओशन में व्हेल्स है ही नहीं, राइट? इट इज सेम पर्सपेक्टिव फॉर यूनिवर्स एज वेल कि हमने अभी तक उन्हें स्पॉट नहीं किया है, बट ऐसा बोल भी नहीं सकते कि वो है ही नहीं। सेटी करके इंस्टीट्यूट है जो सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ, राइट, वो लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर वो लोग स्टीफन हॉकिंस के टाइम पे, स्टीफन हॉकिंस का इनिशिएटिव, उन्होंने एक सिग्नल रीड किया था जो कुछ सेकंड्स के लिए था, बट वो बहुत ही ज्यादा था, और इतने लेवल पे सिग्नल्स प्रोड्यूस करना कि हमें वो यहाँ तक आके सुनाई दे, यहाँ तक आके डिटेक्ट करे, वो ऐसा नेचुरली क्रिएट नहीं हो सकता। एक तो ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सन एक साथ बर्स्ट है, तब वो जाके वो क्रिएट हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियली किसी ने क्रिएट किया हो।
तो वो thousands of sun burst होना उसको भी एक टर्म दे रहे which is SRB or FRB is something FRB which is fast radio wave burst. अगर वो हो रहा है वो डिटेक्ट किया था हमने और रिसेंटली भी डिटेक्शन हुए थे और बीच में भी ऐसा कुछ हमने ऑब्जर्व किया था कि एक जायंट डायसन स्फीयर एक पर्टिकुलर स्टार के आजू बाजू में दिखा था और लोगों ने बोला था कि साइंटिस्ट ने बोला था कि वो शायद तक उसका डिटेक्शन क्लियर नहीं था, तो शायद तक वो हमारा फर्स्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिटेक्शन है जिसके अंदर हमने डायसन स्फीयर ऑब्जर्व किया था। ये क्या होता है जो आपने अभी डायसन स्फीयर बोला, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? सो डायसन स्फीयर इज समथिंग लाइक अ मेगा स्ट्रक्चर जो बहुत ही बड़ा हो, इतना बड़ा कि वो पर्टिकुलर स्टार को भी कवर करे जैसा हमारा सन है। उसके डायमीटर के हाफ में उसके आजू बाजू में मेगा स्ट्रक्चर्स बनाना। हम ISS को अभी एज अ मेगा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए देख सकते हैं। उसके आपने मूवीज में भी देखा रहेगा, स्टार ट्रेक में बहुत बड़े बड़े शिप्स रहते हैं राइट जो स्टार को पूरा कवर कर सकते हैं। दैट उतना बड़ा स्ट्रक्चर हम एज अ मेगा स्ट्रक्चर रेफर करते हैं और वो अगर स्टार के आजू बाजू में दिखाई दे रहा है तो एक इंटेलेक्चुअल स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है जो स्टार का पावर डायरेक्टली हार्नेस कर रही है इंस्टेड ऑफ उसके रेस को हार्नेस करने की वजह से। गॉट इट, ओके। So, have you heard about ये कहानी है? I think so. This is a couple from 1950s, Betty and Barney Hill. So, इनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और इसके बाद में जो ये एलियन अबडक्शंस की स्टोरीज आने लगी, they got very famous. तो Betty and Barney Hill claim कि aliens abducted them and there is a video as well. इसका शायद अब भी YouTube पे होगा। So this man, the Barney Hill guy, he's मतलब वो बता रहे हैं सबको कि क्या क्या हुआ था, उनके ऊपर टेस्ट कर रहे थे वो लोग and he as he is remembering तो वो ना he is going through trauma जो हम PTSD बोलते हैं कि post trauma जो stress disorder होता है, he is going through that and he shouts एंड वो देख के लगता है कि इट इज नॉट समथिंग कि जो आप एक्टिंग में चिल्लाओगे वैसा नहीं था, इट इज कमिंग फ्रॉम विद इन हिम, बहुत एक डीप प्लेस से। एंड फिर उसके बाद में बॉब लजार जो कि सबसे फेमस एरिया 51 को सबसे फेमस करवाया, वो डॉक्यूमेंट्री भी आई। जो क्लेम्स इन्होंने किए, द क्लेम्स दैट दे बोथ हैव मेड अबाउट द स्पेसशिप्स एंड उन्होंने जो डिस्क्राइब किया एग्जैक्टली सेम। सो डू यू थिंक कि ये सब एक्चुअल में होता है या have we got some kind of very strong proof कि alien life does exist? Alien life existence उसका प्रूफ तो हमारे पास नहीं है, लाइक एक सॉलिड प्रूफ नहीं है। बट रिसेंटली जब पेंटागन ने उनके सीक्रेट वीडियोस डिस्क्लोज किए थे उसके अंदर यूएफओ साइटिंग्स दिखाई दिए थे और बहुत से केसेस है जहाँ पे एलियन एब्डक्शन या फिर एलियन साइटिंग्स यूएफओ साइटिंग्स ये लोगों ने देखे हुए, साइट भी किए, फोटोग्राफ्स खींचे हुए और कुछ लोगों ने तो स्केचेस भी बना के दिए कि कैसे दिखते थे वो। तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट इज बेसिकली लाइक गॉड कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जब तक आपने खुद से ऑब्जर्व नहीं किया। तो जिन लोगों ने किया है दे आर क्लेमिंग कि होता है। But then, like, when we talk about alien life and when we talk about human life, तो I'm sure कि कुछ साइंटिस्ट होंगे या कुछ, जैसे आपने वो सेटी का जिक्र किया था, तो there will be ऐसी और ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। So what are the tallest claims जो अभी तक हमें एक ऐसे एजुकेटेड जगह से आ रहे हैं? टॉलेस्ट क्लेम क्या हो सकता है, या मे बी सम साइंटिस्ट हु डेफिनेटली बिलीव कि लाइफ तो है, जैसे मिचियो काकू है एक, तो उनके जैसे और भी कोई है जिनके आप नाम ले सकते हैं? नाम तो नहीं पता, बट धीरे धीरे वो पर्टिकुलर फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए एक नया फील्ड इमर्ज हो रहा है जो एस्ट्रोबायोलॉजी के टर्म्स में जा रहा है। एंड हमारे इंडिया में स्पेशली मुंबई में वी हैव
इंडियन एस्ट्रोबायोलॉजी एंड रिसर्च फेडरेशन IRF, और जिसके हेड है पुष्कर गणेश वैद्य सर. And उनके he is trying to make this thing more popular as astrophysics and astronomy. जो एस्ट्रोबायोलॉजी स्पेसिफिकली ये एलियंस या फिर कॉन्स्पिरेसी थियरीज उनको डिबंक करना या फिर उनका एग्जिस्टेंस प्रूफ करना, और डिफरेंट प्लैनेट्स पे कहाँ पे हमें लाइफ साइंस मिल सकते हैं, लाइफ के साइंस. और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि लाइफ ऑर्गेनिक या फिर कार्बन फॉर्म में ही हो, लाइफ के डिफरेंट फॉर्म भी हो सकते हैं. राइट. तो वो चीज एक्सप्लोर करने के लिए एस्ट्रोबायोलॉजी फील्ड धीरे धीरे इमर्ज हो रही है. और एक नया फील्ड जो अभी रिसेंटली हमने कवर किया था NSS के वेबिनार्स में, विच इज कॉस्मोबायोलॉजी, वो भी इस चीज पे काम कर रहे हैं. राइट. सो एस्ट्रोबायोलॉजी आपने कहा, तो एस्ट्रोबायोलॉजी में फिर लाइक हाउ डू यू फाइंड आउट लाइफ? बिकॉज जब तक आपके पास में एक कोर सब्सटेंस नहीं है, आप प्रूफ कैसे करोगे कि दिस इज दैट एलियन लाइफ? सो अभी फिलहाल तो हम पूरा डेटा पे रिलाई कर रहे हैं. जैसे जो हमारे स्पेस टेलीस्कोप्स है, उनके जो डेटा मिलते हैं, उनके बेसिस के ऊपर हम उसके स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस के बेसिस के ऊपर हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सोप्लैनेट्स में ये केमिकल कंपोजिशन उनके एटमॉस्फेयर में दिखाई दे रहे हैं. तो शायद तक वो हमारे लाइक अर्थ के केमिकल कंपोजिशन से अगर मिक्स हो रहा है, मतलब मैच हो रहा है, तो शायद तक वहां पे हो सकता है कि वहां पे एलियन लाइफ एग्जिस्ट करता हो. बट हमारे जैसा फिजिकल जैसा हम इवॉल्व हुए, इंटेलिजेंट हुए, वैसे ना हो सके. इट कैन बी सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया वगैरह जैसा भी हो सकता है. हाँ, वो एक है. उससे मुझे याद आ रहा है कि साइंटिस्ट थे कॉलेज ड्रेक, उन्होंने एक बहुत बड़ा इक्वेशन दिया था जो एलियन लाइफ का काउंट दिखाने के लिए था, which is also known as Drake equation. बट उसका एक प्रॉब्लम ये था कि वो यूनिवर्स का कितना मतलब विजिबल यूनिवर्स जितना है, उसके अंदर कितने प्लैनेट्स, कितने गैलेक्सीज, कितने स्टार्स, प्लस वो प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में है या नहीं, वो कंसिडर करके चल रहा है. इसलिए वो इक्वेशन थोड़ा सॉल्व करने के लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ता है. या और उसमें ये भी कंसिडर किया है कि वो पर्टिकुलर लाइफ इवॉल्व हुआ है या नहीं, आर दे केपेबल ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशंस. वो कंसिडरेशन की वजह से वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होने के कारण वो इक्वेशन सॉल्व करने को डिफिकल्टी हो रहा है. ओके, गॉट इट. सो लाइक मेरा I was thinking something, जो मैं भूल गया अभी, but it was related to this equation, जो I have lost the track of that thought. But then ठीक है, हमने आज बहुत सारी बातें की, बहुत हमें अमेजिंग न्यूज़ पता चली, एंड by the time this episode comes out, I am sure कि इन न्यूज़ में और भी डेवलपमेंट्स हुए रहेंगे. So before we end this podcast, firstly, any last thoughts on this whole area or the news that you would want people to check it out in the future? Just a second. Yeah. Well, a thought that would be is we should have more science, outreach programs in India, especially because we have potential. Space enthusiasts बहुत है हमारे पास, और उनको स्पेस में जाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा गहराई है. बहुत सारे स्पेस जो एंथुसियास्ट है, वो जो लकी है और जिनका फाइनेंशियली स्टेबल है और जिनको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, बाहर की कंट्रीज में. पर जो लकी नहीं है, वो उनके लिए क्या? सो उनके लिए हम NSS मुंबई के थ्रू डिफरेंट पॉडकास्ट रखते हैं, डिफरेंट वेबिनार्स रखते हैं. हम लोग स्पीकर को बुलाते हैं, और हमारे जो मेंटर्स है वो खुद इंडियन थे, इंडियन ओरिजिन बने, और उन्होंने नासा में भी काम किया है. डॉक्टर रवि जो हमारे चीफ मेंटर है, वो उन्होंने पूरा स्पेस शटल पे काम किया था, और वो वहाँ पे सेफ्टी के लिए थे. और उनके अंडर कल्पना चावला के टाइम पे भी वो थे वहाँ पे. Oh wow.
और he was the man responsible to launch Kalpana Chawla. Wow. मतलब individually नहीं बोल सकते, but he was there. He was In the team. in the responsibility of her. Yeah. और जो हमारे सेकंड मेंटर है वो अभी परसिवरेंस रोवर के जो मॉक्स इंस्ट्रूमेंट है उनके उनमें टेक्निकल स्टाफ थे, और उन दोनों के वेबिनार्स हम लोगों ने कवर किए. You can visit it on our YouTube channel as well. And अगर आप स्पेस एंथुसियास्ट हो और आपको पता नहीं है कि कहाँ पे आपको शुरू करना है, को ऐसा लग रहा है कि ओके ये फील्ड मेरे लिए बनी नहीं है, बट आप में स्टिल इंटरेस्ट है वो चीज के लिए, तो आई वुड रिकमेंड कि आप बहुत ज्यादा बुक्स पढ़े उस चीज पे. अगर आपको किसी चीज का डाउट आ रहा है तो आप साइंटिस्ट को रीच आउट करें, इंजीनियर्स को रीच आउट करें, और डेफिनेटली हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, बिकॉज ये सेक्टर हमारे कंट्री में इतना एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, बट बाहर के कंट्रीज में हो रहा है, और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दे आर रेडी टू हेल्प. आप उनसे करो कि हमें ये चीज परेशानी हो रही है या फिर ये चीज हमें समझ नहीं आ रही, कैसा ये फील्ड परस्यू कर सकते हैं, अब उनको जाके टेक्स्ट करो. अब तो डेफिनेटली वो रिप्लाई करेंगे, इवन लेट रिप्लाई करेंगे, बट वो करेंगे. राइट, परफेक्ट. एंड आपने कहा कि बुक्स पढ़ो, तो आर देयर एनी लाइक स्पेस के ऊपर बुक्स जो लोगों को पढ़नी चाहिए? अब जैसे या साइंस के ऊपर भी हो सकती है, तो मैंने एक ही पढ़ी है विच इज स्टीफन हॉकिंग की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थियरी ऑफ एवरीथिंग. इट्स अ सीरीज ऑफ बुक्स, तो मैंने उसका शायद फर्स्ट वाला वॉल्यूम पढ़ा है. सो फ्यू ऑफ द बुक्स जो मैंने पढ़े हुए उसमें आपने जो बोला वो एक है. प्लस एस्ट्रोनॉमी के कुछ बिगनर्स वाले बुक्स है जो मैं सजेस्ट करूंगा. द यूनिवर्स इन अ नटशेल, फिर फैब्रिक ऑफ द कॉस्मोस विच इज बाय ब्रायन ग्रीन, फिर नाइट वॉच करके बुक है जो पूरा एक प्रैक्टिकल गाइड है कि यूनिवर्स को कैसे देखा जाए उसके ऊपर. फिर गाइड टू द स्टार्स बाय कैन ग्रॉन. और मोस्ट ऑफ अगर आपको सोलर सिस्टम पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो encyclopedia is very much good to have. और या उतने अभी तो मुझे इतने याद आ रहे हैं, बट बाकी जो बुक्स हैं मैं आपको बता दूंगा. Perfect. So thank you so much Prathamesh for doing this podcast and coming on this podcast. काफी सारी न्यूज आपने आज बताई, बहुत सारी ऐसी न्यूज थी जिसके अराउंड ऐसा मेरा हेड रैप करना एक पॉइंट पे मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा था, बिकॉज आई डू नॉट कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड. तो फर्स्टली वो है, एंड व्हेन यू आर गेटिंग सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवन एज क्वालिफाइड एज यू, तो वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है टू गेट द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि you explain it in a way कि जो लेमैन को समझ जाए. नहीं तो अदरवाइज इफ यू वॉच द फोरम्स एंड एवरीथिंग, वहां से वो न्यूज अगर आपको मिलती है तो वो बहुत chaotic होता है, वो बहुत टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो यू डू नॉट अंडरस्टैंड. सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट. आई एम श्योर कि जो भी इस एपिसोड को Spotify पे सुन रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, दे हैव लव्ड दिस एपिसोड एंड दे वुड वांट मी टू डू मोर एपिसोड्स विद यू. तो या, विद दैट बीइंग सेड, दिस इज द एंड. थैंक यू सो मच Prathamesh. Thank you so much for having me here. I will see you next time. And do subscribe to Awara Musafir Show. Thank you